Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the seventh part of solutions of NCERT questions of solutions chapter of class 12 CBSE NISC. In this video we will discuss exercise questions 34 to 41. So let's begin. First question we have is 34 is paper pressure of water at 293 Kelvin is 17.535 mmHg. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 grams of glucose is dissolved in 450 grams of water. तो यहाँ पे P नॉट वन जो है वाटर का दे रखा है 17.535 mmHg और हमें निकालना है कि जब उसमें 25 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व कर दिया तो कितना हो जाएगा. तो मास ऑफ ग्लूकोज गिवन W2 इक्वल्स टू 25 ग्राम्स, mass of water 450 grams, W1. Molar mass of glucose C6H12O6 is 180 grams per mole. Molar mass of water is 18 grams per mole. Number of moles of N2 25 upon 180 0.139 और for N1 450 upon 18 molecular weight से दोनों को डिवाइड किया इक्वल्स टू 25. अब P नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 माइनस N2 प्लस N1. तो P नॉट वन मालूम है 17.535, P1 निकालना है माइनस P1 अपॉन 17.535 इक्वल्स टू 0.139 अपॉन 0.139 प्लस 225. सॉल्व कर लेंगे. P1 आ गया 0.097. P1 इज तो यहाँ से 17.535 माइनस P1 इक्वल्स टू 0.097. P1 equals to 17.44 mmHg. Hence, vapor pressure of water is 17.44 mmHg when glucose is dissolved in water. Next question is Henry's law constant for molality of methane in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10 power of 5 mmHg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mm of Hg. 760 mmHg के अंडर में सोलिबिलिटी जो है मीथेन की वो निकालनी है इन बेंजीन. तो मैं गिवन है P इक्वल्स टू 760 mmHg, KH इक्वल्स टू 4.27 into 10 power of 5 mmHg. अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इक्वल टू KHX, X इक्वल टू P अपॉन KH. P गिवन है 760, KH गिवन है 4.27 into 10 power of 5 mmHg. सॉल्व कर लेंगे तो P आ जाएगा ऐसे X आ जाएगा 177.99 into 10 power of minus 5, which is approximately equal to 178 into 10 power of 5. Hence, the mole fraction of methane in benzene is 178.10 into 10 power of minus 5. Next question is 100 grams of liquid A, which is molar mass 140 grams per mole, was dissolved in 1000 grams of liquid B, molar mass 180 grams per mole. The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr. Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in the solution if the vapor pressure of the solution is 475 torr. तो दो कंपोनेंट है A और B. A की जो मॉलिक्यूलर वेट है, B का मॉलिक्यूलर वेट दोनों दिया हुआ है और A का जो B प्योर लिक्विड कहेंगे P1 नॉट P2 नॉट दिया हुआ है 500 torr. तो पूछ रहा है P1 नॉट कितना है और P टोटल अगर 475 है सोल्यूशन का, तो उस सोल्यूशन में पीक प्रेशर कितना है. टोटल प्रेशर एंड ऑफ द सोल्यूशन इज 475 torr. तो निकालना क्या है इट्स वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन एंड इट्स प्योर. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड ए 100 अपॉन 100 ग्राम्स ऑफ लिक्विड डिजॉल्व किया तो 100 अपॉन 140 इक्वल्स टू 0.714. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड भी 100 अपॉन 180 इक्वल्स टू 5.556. Then mole fraction of A equals to Na upon Na plus Nb equals to 0.114 and mole fraction of B equals to X B equal to 1 minus 0.114 equals to 0.886. Vapor pressure of pure liquid B, PB not given है 500 torr. Therefore vapor pressure of liquid B in solution is PB equals to PB not into XP. XP निकाल चुके हैं, PB not पता है, सॉल्व करेंगे. PB आ जाएगा 443. टोटल वेपर प्रेशर इज 475, जिसमें से PB इज इक्वल्स टू 443 माइनस कर देंगे तो PA आ जाएगा 32 torr. नाउ PA इक्वल्स टू PA नॉट XA. तो PA मालूम है, XA पता है, PA नॉट निकालना है. 32 अपॉन 0.114 इक्वल्स टू 280.7 torr. हेंस तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड PA इज 280.7 torr. तो जो टोटल सोल्यूशन में प्रेशर था
पी ए का वो है 32 टॉर, और पी ए नॉट जो आइडियल था प्योर लिक्विड ए का था वो है 280.7 टॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर acetone and chloroform at 328 Kelvin are 741.8 mmHg and 632.8 mmHg respectively. Assuming that they form ideal solution over the entire range of composition, plot P total versus P total P chloroform and P acetone as a function of X acetone. The experimental data observed from the different composition of mixture is. तो एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हमें ग्राफ प्लॉट करना है। डेटा जो हमें दे रखा है वो 100 इंटू एक्स एसीटोन दिया हुआ है, पी एसीटोन एमएमएचजी एंड पी क्लोरोफॉर्म एमएमएचजी वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम पहले थोड़ा सा यूज़ करेंगे और चेंज करेंगे। कैसे करना है कि एक्स एसीटोन दिया हुआ है, हमने कॉपी कर लिया, पी एसीटोन यहाँ पे गिवन है वो कॉपी कर लेंगे, और एक्स क्लोरोफॉर्म एमएमएचजी जो को गिवन है, और आखिरी में पी टोटल कितना है वो नहीं दिया हुआ है, तो टोटल हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करके एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म उसको ऐड करके निकाल लेंगे पी टोटल और प्लॉट कर लिया। तीनों को प्लॉट करने के बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे 100 टाइम्स ऑफ एक्स एसीटोन और वेपर प्रेशर इन एमएमएचजी। तो टोटल प्रेशर वर्सेस 100 टाइम्स ऑफ एक्स एसीटोन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक एक करके सारे पॉइंट्स अलॉट करते रहेंगे, उसको ज्वाइन कर देंगे तो पी एसीटोन निकाल लेंगे, पी क्लोरोफॉर्म निकाल लेंगे और पी टोटल निकाल लेंगे। पी टोटल यहाँ पे नहीं दिया हुआ था तो हमें कैलकुलेट करना पड़ा। इसके से ऊपर का जो कर्व दिख रहे हैं वो आएगा, और क्योंकि ये लोवर्ड है इसलिए नेगेटिव डिविजन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म आइडियल सोल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड naphthalene at 300 Kelvin is are 50.71 mmHg and 32.06 mmHg respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 grams of benzene is mixed in 100 grams of toluene. तो 100 grams of toluene में 80 ग्राम बेंजीन डाला, वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोलर मास ऑफ बेंजीन is 78, मोलर मास ऑफ toluene is 92, moles present in 80 gram of benzene 80 upon 78 1.026, moles present in 100 grams of toluene is 100 upon 92 equals 1.087। मोल फ्रैक्शन कितना होगा एक्स बी, तो 1.026 अपॉन 1.026 प्लस 1.087 इक्वल्स टू 4.486। बेंजीन के लिए आ गया 0.486 और टोलुइन निकालेंगे तो 1 माइनस 0.486 इक्वल्स टू 5.514। दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। इफ it is given that the vapor pressure of pure benzene PB naught equals 50.71 mmHg and vapor pressure of pure toluene is 32.06 mmHg. Therefore, partial pressure of benzene equals to PB equals to PB into PB naught into XP, PB naught दिया हुआ XP निकाल लिया, 0.514 into 32.06 equals to 16.479 mmHg and mole fraction निकालना तो PB upon PB naught plus P total equal to 24.645 upon 24.645 plus 16.479 सॉल्व कर लेंगे 0.59 इक्वल्स टू 0.6। तो 0.6 इसका मोल फ्रैक्शन आ गया इन द कंपोजिशन इन द कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the air is a mixture of a number of gases. The major component are oxygen and nitrogen with approximate proportion of 20% and 79% by volume at 298 Kelvin. The water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atm at 298 Kelvin if the Henry's law constant for oxygen and nitrogen are 3.3 into 10 power of 7 mmHg and 6.51 into 10 power of 7 mmHg respectively. Calculate the composition of these gases in water. वाटर में कंपोजिशन कितना होगा गैसेस का, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 20%, नाइट्रोजन का हो जाएगा 79%। ऑल्सो द गिवन दैट वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट टोटल प्रेशर ऑफ 10 atm दैट इज 7600 mmHg। देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 20 upon 100 into 7600 mmHg इक्वल्स टू 1520 mmHg। partial pressure of nitrogen equals 29 upon 100 into 7600 equals to 6004 mmHg.
Now according to Henry's law, P equals to kh times of x. For oxygen, PO2 equals to kh times of XO2. तो XO2 निकालना है, PO2 अपॉन KH निकालें, KH गिवन है, P नॉट मालूम निकाल चुके हैं 15-20 mHg। तो KH पता था, सॉल्व कर लेंगे, 4.61 इंटू 10⁵ आ गया। नाइट्रोजन के लिए PN2 इक्वल टू KH इंटू X इंटू निकालना है, 6004 निकाला था अपॉन 6.51 इंटू 10⁻⁷ जो कि गिवन है, सॉल्व कर लेंगे, 9.22 इंटू 10⁻⁻5 आ गया। हेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन वाटर आर 4.61 इंटू 10⁻⁵ एंड 9.22 इंटू 10⁻⁵ रिस्पेक्टिवली। दोनों का से निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 I equals to 2.47 dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अमाउंट निकालना है जिसका कि ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 atm हो एट 2.27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि उसका वॉल्यूम 2.5 लीटर्स वाटर में उसको डिजॉल्व किया गया और उसका I यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो 2.47। तो पाई इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ एन अपॉन वी इंटू आर टी, सी आर टी होता है, सी इक्वल्स टू एन अपॉन वी मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो पाई इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ एन अपॉन वी इंटू आर टी, पाई इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ डब्ल्यू अपॉन एम वी इंटू आर टी, जहाँ से डब्ल्यू निकालेंगे पाई एम वी अपॉन आई आर टी। पाई हमको पता है 0.75, वी पता है 2.5, आई पता है 2.47, टी पता है 300 केल्विन, और आर यूज़ करेंगे 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सो m इक्वल्स टू 1 इंटू 40 प्लस 2 35.5 111 mFHg। CaCl2 के लिए हमने कैलकुलेट किया तो 111 ग्राम पर मोल आ गया। m W निकालना है, सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे इन द फॉर्मूला जो ऊपर मेंशन है, W इक्वल्स टू पाई वी एम वी अपॉन आई आर टी, यहाँ से आ गया 3.42। हेंस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ CaCl2 इज 3.42 grams। Next question, determine the osmotic pressure of the solution prepared by dissolving 25 milligrams of K2SO4 in 2 liters of water at 25 degree centigrade, assuming that it is a completely dissociated। कंप्लीट डिसोसिएशन अगर होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है सॉल्विंग 25 mg ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे इसको भी। K2SO4 डिजॉल्व अगर डिसोसिएटेड होगा तो 2K प्लस SO4 2 माइनस बनाएगा। टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस इज 3, 2K प्लस के हैं और 1 SO4 2 माइनस का है। वॉल्यूम 2 लीटर है। टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन। ऑल्सो R इक्वल्स टू 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। वॉल्यूम की तरह मास निकालिए 174 ग्राम पर मोल। अप्लाइंग रिलेशन पाई इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ एन अपॉन वी आर टी इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ डब्ल्यू अपॉन एम एन अपॉन वी आर टी। वैल्यूज पुट कर देंगे 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। यहाँ से दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उनके काम आ सके। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।